السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں گاندھی میدان میں وقت بچاؤ دستور بچاؤ کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں، اور اس میدان کو سجانے، سنوارنے اور اس دن کے لیے تیار کرنے کی ذمہ داری امارت شرعیہ پھلواری شریف پٹنہ کے نائب قاضی شریعت حضرت مولانا قاری سہیل اختر صاحب کو دی گئی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ تیاریوں کے سلسلے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتلائیں۔ حضرت قاری صاحب، کیسی چل رہی ہے تیاریاں؟ تیاری بڑی تیزی سے چل رہی ہے، زور شور سے تیاریاں چل رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے میں یہ اسٹیج بنایا جا رہا ہے، آدھا کام ہو چکا ہے اور ابھی 16 بلاکس بھی اس میں بن چکے ہیں، 8 بلاکس باقی ہیں، انشاءاللہ کل تک وہ بھی تیار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے اسٹیج کے پیچھے گرین روم ہے مہمانوں کے لیے، اور پھر یہ استقبالیہ بھی بنایا گیا ہے یہاں پر، اور جو گیٹ ہے وہ بھی گیٹ بھی لگا دیا گیا ہے، اس پہ بینر وغیرہ ٹانگ دیا گیا ہے۔ یہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ وقف گیٹ یا اسی طرح جن دھاراؤں کی خلاف ورزی اس قانون میں ہوئی ہے اس کے نام پر بھی گیٹ بنایا گیا ہے، تاکہ یہ سب کا مقصد یہ ہے کہ ایک پیغام جائے پوری قوم کو کہ یہ پروگرام وقف کو بچانے کے لیے، یعنی مسجدوں کو بچانے کے لیے، قبرستان کو بچانے کے لیے ہے، جو بھی پراپرٹی ہے مسلم کو اس کو بچانے کے لیے۔ ہم کسی سمودائے یا کسی اور کے خلاف ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، ہم ہر ہندوستانی سے کہنا چاہتے ہیں جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اس ملک میں امن لانا چاہتے ہیں، وہ اس پروگرام کا ضرور حصہ بنائے۔ یہ بڑا اچھا پروگرام ہو رہا ہے اور تاریخی پروگرام ہو رہا ہے، میں تمام لوگوں سے کہوں گا اس پروگرام میں ضرور شامل ہوں۔ بہت شکریہ حضرت قاری صاحب۔ اب میں لے جاتا ہوں آپ کو، حضرت قاضی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، حضرت نائب امیر شریعت صاحب کی طرف۔ حضرت آپ بتائیں، آپ کب تشریف لائیں اور اس پروگرام کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، دیکھیے وقت کے تعلق سے جو بیداری ہونی چاہیے تھی، الحمدللہ اور انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تجویز کے مطابق ہمارے شریعہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ نے تمام تنظیموں کو بہار کی لے کر جس بڑے پیمانے پر بیداری پیدا کی ہے وہ واقعتاً بہت ہی اہم ہے، اور جتنا جوش و خروش کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ لوگوں میں یہاں آنے کی تیاری ہے، اور اس وقت قانون کے خلاف جس انداز سے لوگوں میں جوش و خروش محسوس ہو رہا ہے وہ بھی واقعتاً قابل دید ہے۔ اب یہ تیاریاں بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، الحمدللہ کل ایک دن بچ گیا، یہ مکمل ہو جائے گی، اور پرسوں ہی یہ نظام باضابطہ جو ہوگا، ہم سمجھتے ہیں کہ لاکھوں کا یہاں مجمع ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے انتظامات جس معیار سے ہو رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، وہ بھی بہت ہی بہتر ہے، اور بہتر سے بہتر انشاءاللہ یہ ہوگا۔ اور ہمارے شریعہ کی طرف سے کھانے کا، پارکنگ کا، ساری چیزوں کا نظام بھی بنایا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس میں آنے والوں کے لیے جن سہولتوں کی اور جن رعایتوں کا تھا، جو ہدایات تھیں، وہ سب بھی دی گئی ہیں، تو ہر لحاظ سے مکمل اپنی طرف سے تیاری ہے۔ بس دعا بھی کرنا ہے تمام حضرات کو، اللہ تعالیٰ امن و امان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس پروگرام کو کامیاب فرمائے اور ہر طرح کی شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، یہ دعا بھی کرنی ہے۔ اور تمام لوگوں سے درخواست بھی ہے کہ وہ جوش و جذبے کے ساتھ ہمارے شریعہ کی ہدایات کے مطابق سفر کریں اور آئیں، اور اس وقت قانون کے خلاف حصہ لے کر اپنا احتجاج درج کرائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، اب میں آپ کو لے چلتا ہوں حضرت قاضی شریعت مرکزی دارالقضاء مفتی انظار صاحب کی طرف۔ حضرت آپ بتائیں، جو لوگ آنے والے ہیں ان کی تعداد کیا ہوگی اور ان کے رہنے سہنے کا کیا انتظام ہے عمارت کی طرف سے؟ یہاں جو لوگ آنے والے ہیں بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال سے خاص طور سے، اور ملک کے مختلف حصوں سے، وہ تقریباً 10 سے 15 لاکھ کے بیچ میں ہوں گے لوگ، اور بڑی تیاری ہے لوگوں میں۔ ہر علاقے میں ایک الگ جوش ہے، جذبہ ہے، اور ہر شخص اپنی جگہ پر اس ایکٹ کے تعلق سے ناراض دکھتا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جب تک یہ ایکٹ واپس نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک لوگوں کا یہ احتجاج جاری رہے گا۔ اس کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تجویز پر یہاں کی ملی جماعتیں اور خاص طور سے امارت شریعہ اور حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے
ये तय किया कि 29 जून को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा एहतजाज किया जाए, जिसकी तैयारी आप देख रहे हैं माशाल्लाह ज़ोरों पर है। और हमारे रफ़ीक़ कार और रफ़ीक़ दर्स हज़रत मौलाना सोहेल अख्तर कासमी साहब जो नायब काज़ी शरीयत है इमारत शरिया में, वो गांधी मैदान के पूरे इस इजलास के ज़िम्मेदार हैं, जिनकी निगरानी में आप देख रहे हैं चारों तरफ माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि गांधी मैदान लोगों के मुंतज़िर है। और 29 तारीख को इंशाअल्लाह पटना के इस गांधी मैदान में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल के लोग ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के इंसाफ पसंद लोग, मुल्क से मोहब्बत करने लोग इंशाअल्लाह जमा होंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अब मैं आपको ले चलता हूँ हज़रत मौलाना काजी अंजार साहब की तरफ, जो कि काजी अनवर साहब की तरफ, माफ़ी चाहता हूँ, ये काजी शरीयत हैं रांची के। हज़रत, आप बतलाएं प्रोग्राम के ताल्लुक़ से क्या सरगर्मियाँ हैं आपकी, और आप गांधी मैदान आकर के कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा की तैयारी तो शुरू है ही, लोगों की आमद भी शुरू हो गई है माशाअल्लाह। शहर पटना में लोगों का आने का सिलसिला जारी हो चुका है और मुख्तलिफ़ अजला से लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम, ये कॉन्फ्रेंस तारीख़ी कॉन्फ्रेंस होगी और पूरे मुल्क के नुमाइंदगी इसमें रहेगी। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल से तो कसरत से लोग आ ही रहे हैं, लेकिन पूरे मुल्क से नुमाइंदगी रहेगी और बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत होगी, लाखों की तादाद में। हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार 29 तारीख के भीड़ को देख करके अपने नज़रिए में और अपने फैसले में गौर करेगी और उम्मीद है कि ये कानून के ख़िलाफ़ जो दस्तूर के ख़िलाफ़ जो कानून बना है, इंशाअल्लाह उसको वापस लेने की कोशिश। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इस मजलिस में तशरीफ़ रखते हैं जनाब एडवोकेट साहब। हज़रत, आप बतलाएं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं गांधी मैदान की तैयारियों को देख करके? जनाब जावेद इकबाल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, गांधी मैदान तो यहाँ खिला है। इस वक्त का मंजर कुछ और ही, इस वक्त के मंजर में रूहानियत नज़र आ रही है चार तरफ इस मैदान में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो महसूस किया, तहरीक जब से हज़रत अमी शरीयत के ऐलान पर शुरू हुआ है, ये तहरीक हज़रत के आवाज़ से शुरू होकर के अब अवाम के बीच में चली गई और अवाम ने इसको अपना प्रोग्राम मान लिया है और अवाम बहुत संजीदा है और बहुत जज्बे के साथ लोग इसको मजबूती दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं जिस मस्जिद का मुसल्ली हूँ, माशाअल्लाह हमारे यहाँ 2 ज़िले का इंतज़ाम है। मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, 2 ज़िले का इंतज़ाम है, सुपौल और मधेपुरा। 100 से ज़्यादा हमारे यहाँ वॉलंटियर तैयार हैं और आमद इंशाअल्लाह कल सुबह से ही शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छा इंतज़ाम हो रहा है। और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि दानापुर से लेकर के सिटी तक जितने मसाजिद हमारे मदरसे हैं, सब में इस तरह का इंतज़ाम चल रहा है। इवन कि लोग अपने अपने घरों में भी इंतज़ाम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उनके भी रिश्तेदार और मेहमान ने पहले कह रखा कि हम लोग आपके यहाँ आएंगे, तो इस तरह का भी इंतज़ाम है। तो जब अवामी इंतज़ाम हो जाता है तब समझिए कि वो प्रोग्राम माशाअल्लाह कामयाब होगा। या और ये हमारे नॉलेज में ये दूसरा मौका होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मौलाना अबुल रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो तहरीक चला करके प्रोग्राम किया था, उसके बाद ये दूसरा मौका है और इंशाअल्लाह रहमान कि उससे भी ज़ायद जो है कि लोगों की भीड़ होगी और सिर्फ भीड़ ही नहीं होगी बल्कि यहाँ से जो आवाज़ निकलेगी वो हुकूमत को सुनाई देगी इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ, एक नज़ारा दिखा देता हूँ गांधी मैदान का। हमारे दोस्त अहबाब जनाब क़यामुद्दीन साहब भी तशरीफ़ रखते हैं और ये मैं आप हजरात के सामने आप हजरात के रूबरू कराना चाहता हूँ काजी सिबगतुल्लाह साहब, ये काजी शरीयत है कटक के। हज़रत, आप बतलाएं आपके क्या तासुरात हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह हम मौलाना सोहेल अख्तर साहब के साथ यहाँ मौजूद है तैयारी के सिलसिले में और बड़ा जोश व खरोश लोगों में देखने को मिल रहा है। तैयारी के सिलसिले में लोग आ भी रहे हैं, अतराफ़ से देख कर जा भी रहे हैं। जोश और जज्बा प्रोग्राम के ताल्लुक़ से, कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से है और अच्छा महसूस हो रहा है और सारी की सारी तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। दुआ फरमाए तमाम हज़रात के अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए, बामक़सद बनाए। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको अपने साथियों की ओर ले चलता हूँ। ये जनाब मिनहाज साहब हैं
ये भी हमारे साथ आए हैं इस प्रोग्राम को देखने के। मौलाना मिनहाज साहब बताइए हमारे नाज़रीन को क्या है आपके तासुरात? माशाल्लाह हम लोग इस वक्त अभी गांधी मैदान की तैयारियां माशाल्लाह ज़ोरों पर है और बहुत ही कलील मुद्दत में, बहुत ही कम वक्त में माशाल्लाह की पूरी तैयारी चल रही है और इंशाअल्लाह ये गांधी मैदान एक इतिहास रचने की कगार पर है और हम मुसलमान आकर के ये साबित कर देंगे पूरी तादाद में कि हुकूमत जो एक कानून लाई है मुसलमानों को पसंद नहीं है, इसको कानून को हुकूमत जल्द से जल्द वापस ले, हम इसका मुतालबा करते हैं। और तमाम आवाम से जो इस चीज़ लाइव को देख रहे हैं उनसे भी अपील करते हैं कि आप हजरात अपने इलाकों से आकर एक तारीख़ का हिस्सा बनिए और हुकूमत वक्त को बता दीजिए कि काला कानून हमें नामंजूर है, नामंजूर है। जनाब क़यामुद्दीन साहब, आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि पटना शहर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बाशिंदगान बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल का इस्तकबाल करने के लिए मुंतज़िर है, फर्श-ए-राह है और अपनी बाहें फैलाए हुए है। बस आपकी आमद का इंतज़ार है। पूरा पटना शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हर जगह पर पूरे पटना शहर के अंदर 12 गेट्स लगे हुए हैं और उसके साथ साथ पूरे गांधी मैदान के इर्द गिर्द तकरीबन 8 गेट हैं और वो गेट का जो रखे गए हैं उसके पीछे जो सोच है वो हज़रत अमीर शरीयत की है कि भाई जब असल जो वो गेट लगते हैं आमतौर पर वो अशखास के नाम से, लेकिन हज़रत अमीर शरीयत ने कहा कि नहीं, इस मरतबा चूँकि वक्फ हमारा मुद्दा है तो सारे जो गेट्स होंगे वो आम तौर पे अक्सर जो गेट्स हैं उनके नाम वक्फ की जो इस्तिलाहात हैं और इसी तरीके से दस्तूर की जो इस्तिलाहात हैं उनके नामों पर रखे गए हैं। ये एक बहुत यूनिक काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और आप इधर देख सकते हैं कि ये स्टेज इधर पीछे बन रहा है, पीछे स्टेज है, फिर उसके बाद उसके जस्ट बगल में इधर VIP जोन है और इधर जो है वो ग्रीन रूम है जो फ्रेश वगैरह होने के लिए। तो और इस तरीके से ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक ब्लॉक है, ये जो बांस का जो ये पूरा लगा हुआ है ये एक ब्लॉक है। इस तरीके से पूरे गांधी मैदान के अंदर 24 ब्लॉक्स हैं और उन 24 ब्लॉक्स के अंदर यानी आवाम को, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये तरीका अपनाया गया है कि पहले एक ब्लॉक को जो है भरा जाएगा, फिर जैसे ही एक ब्लॉक भर गया उसको बंद करके फिर उसके बाद अब उसमें लोग नहीं आएंगे, फिर उसके बाद दूसरे ब्लॉक में चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो है भीड़ को कंट्रोल करने का तरीका अपनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे लोग तैयार हैं, इंतज़ामिया तैयार है। हज़रत मौलाना इस पूरे जो है गांधी मैदान के ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना काजी सुहेल अख्तर साहब हैं, वो भी माशाअल्लाह मुस्तैदी के साथ इसमें पूरे रात दिन जो है इसमें लगे हुए हैं और कन्वीनर मौलाना अहमद हुसैन कासमी साहब भी माशाअल्लाह ऑफिस में बैठकर तमाम उमूर को जो है अंजाम। अब ऐसा साहब हम लोग सब एक ही टीम में हैं, वहाँ सुहेल सज्जाद साहब भी, अल्लाह का शुक्र है कि अब ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का बोझ ज़रा सा हल्का हो गया, अब थोड़ा हल्का हल्का फील कर रहे हैं। तकरीबन 10 रातों से ये हमारी पूरी टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह सोई नहीं है, मतलब फजर की नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग और उसके बाद सोते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हम लोगों का बोझ थोड़ा सा कम हुआ है। अभी तक आप देख रहे थे मौलाना सुहेल सज्जाद साहब है जो माशाअल्लाह हमारे सामने मौजूद हैं और मैं आपसे भी ज़रा सा तासुर जानना चाहूँगा कि आपके दिल में इस वक्त क्या जोश और जज्बा है वो आवाम के दरमियान पेश किया जाए। प्रोग्राम की तैयारियों को देख करके ऐसा महसूस होता है कि इंशाअल्लाह इस बार हम लोग 2018 में जो 15 अप्रैल को प्रोग्राम हुआ उसका भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है और लोगों का जो जोश और जज्बा और लोगों की जानिब से जो फ़ोन और रब्ता और तमाम चीज़ें हो रही हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, उससे ये अंदाज़ा होता है कि इंशाअल्लाह एक बड़ी तादाद रहेगी लोगों की जो आएंगे और आकर के हुकूमत वक्त को बतलाएंगे कि हमें ये काला कानून मंजूर नहीं है, उसे हर हाल में अपने इस कानून को वापस लेना पड़ेगा ताकि वक्त के मामलात में जो दखलंदाजी हुकूमत चाहती है करना वो ख़त्म कर दे, बंद कर दे और हम मुसलमानों की जायदादें, हमारे बुज़ुर्गों की जायदादें जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे कामों के लिए उन्होंने वक्फ किया था, उन जायदादों में मुसलमान और जो भी दीगर लोग हैं जिस मकसद के तहत उसको वक्फ किया गया है उसमें उसका इस्तेमाल हो सके। तो बहरहाल आखिर में मैं तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि बड़ी तादाद में आप हज़रात पटना पहुँचें और इस प्रोग्राम को तारीफ़ी बनाएँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग वक्फे से आप हज़रात को जो है कि अपडेट करते रहेंगे
اور گاندھی میدان کی صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے. آپ لوگ بنے رہیے ہمارے ساتھ انشاءاللہ پروگرام کے کوریج کے لیے. آپ حضرات کو دھیرے دھیرے اور جیسے جیسے کام بڑھتا جائے گا ساری جانکاری اس فیس بک امارت شریعہ سے دی جائے گی. اور جو حضرات اب تک اس پیج کو لائک نہیں کیے ہیں ضرور لائک کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لوگوں کو بتا دیں کہ انشاءاللہ العزیز پورا پٹنہ اپنے مہمانوں کے لیے اپنے مہمانوں کے لیے تیار ہے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. جزاکم اللہ، شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.